right? In the last lecture, we have started with methods of preparation of alcohol. Can anyone tell me पहला method अपन ने कौन सा देखा था? Using alkyl halide. very good. Alkyl halide. We can use any kind of alkali, NaOH, KOH, yeah, silver oxide. The second method was Bromalkene. Indirect hydration. हाँ, दो देखा था. Using concentrated sulfur direct hydration और diborin के साथ indirect hydration. Third method Using Grignard reagent. yes, Grignard reagent. But Grignard reagent में starting किसके साथ आपने Grignard reagent को react किया था so that you will get alcohols? Carbonyl compound use किया था. We have used aldehyde and ketones, right? And in the same way, last reaction was reduction. अब पहला topic मैंने लिया था primary alcohol on oxidation gives you. Yes, वो chart we have seen in the last lecture. Primary alcohol on oxidation gives you Aldehyde. Aldehyde. oxidation किया तो क्या मिलेगा? Aldehyde. Aldehyde का oxidation करके aldehyde ही मिलेगा क्या? Carboxylic acid. Carboxylic acid. Yes. Secondary alcohol on oxidation gives you Ketone. Ketone. tertiary normal में होता नहीं है. Clear? Same way अगर aldehyde का मैंने reduction we have seen the reduction of aldehyde, right? Aldehyde on reduction. It can be using in presence of Rane nickel या normal nickel भी या platinum palladium, and you are going to get primary alcohol. Ketone का reduction kiya, so we get secondary alcohol, right? Even the reduction can be carried out in presence of lithium aluminium hydride. Lithium aluminium hydride is quite expensive as compared to nickel or platinum. Is it clear? This we have seen in the last lecture, right? In the same way, even we can see students, अगर carboxylic acid का भी reduction किया, if I am reducing, अगर carboxylic acid का reduction किया तो आपको क्या मिलेगा? What you are going to get if I am doing the reduction of carboxylic acid? तो Aldehyde. yes, we should get aldehyde, right? But aldehyde को isolate करना बहुत difficult है because the reaction, usually speaking, carboxylic acid का reduction होता है तो we should get aldehyde, and aldehyde on reduction gives you aldehyde का reduction किया तो आपको क्या मिलेगा? 1 degree alcohol. 1 degree alcohol. 1 degree alcohol. See, if I'm using a normal reducing agent, in this case, the reaction won't stop at aldehyde stage. तो हमेशा जब भी carboxylic acid का जब भी reduction होता है, your final product should be primary alcohol only. 1 degree alcohol, aldehyde stage में reaction stop करना या aldehyde को isolate करना, it is quite difficult. But in this case, अगर आपको carboxylic acid, this we are going to study in aldehyde, ketones and carboxylic acid. Carboxylic acid to aldehyde अगर आपको reduction करना है, there is one reagent which is going to help you out, and that reagent is Dbal H, right? D stands for di-isobutyl. Al stands for aluminium hydride. This only using this reducing agent, you can reduce carboxylic acid to aldehyde. But right now we are studying alcohol, so we are concerned about, we want to get alcohol as the product from carboxylic acid. Is it clear? अगर carboxylic acid, if I'm using this formula RC double bond OH. In your textbook, they have given it as platinum or palladium. मतलब normal उन्होंने reagents दिया है textbook में, but if you go through with the reference books, this reagent won't help you out. Platinum और palladium कभी help नहीं करेगा आपको इसको reduce. इसके लिए selective reagent ही लगता है, and that selective reagent is lithium aluminium hydride. Is it clear? अगर carboxylic acid का reduction करते हो using lithium aluminium hydride, what is your final product in this case? Whether you're going to get aldehyde as the final product or alcohol as the final product? Yes, students? Alcohol.
डायरेक्टली अल्कोहल ही मिलेगा, मतलब अल्डिहाइड मिलेगा बट उसको आइसोलेट करना डिफिकल्ट है. So in this case, your final product will be primary alcohol only and not aldehyde. But अगर एरो पे डिबाइल आ गया, दैट इज डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ गया, तभी जाके आपको अल्डिहाइड मिलेगा. बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ reducing agent they are giving, then your final product will be primary alcohol only. Is it clear? But since lithium aluminum hydride is quite expensive in nature, यहाँ पे दूसरा one point you're going to note it out here. Note, अपने एक और reducing agent देखा है, we have seen sodium borohydride. Even that is acting as a reducing agent, but in this case sodium borohydride cannot reduce carboxylic acid. ये सभी को reduce करेगा except carboxylic acid into 1 degree alcohol. Is it clear? अगर यहाँ पे एरो पे सोडियम बोरोहाइड्राइड आ गया तो योर आंसर विल बी नो रिएक्शन या नो प्रोडक्ट. इज इट क्लियर? हेलो, Yes, ma'am. आपको ये समझ रहा है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया तो आपको फाइनल अल्डिहाइड पहला अल्डिहाइड में कन्वर्जन होगा, अल्डिहाइड विल गेट प्रोड्यूस इनटू प्राइमरी अल्कोहल. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट अल्डिहाइड. So if I want my final product as aldehyde, only this reducing agent is going to help. दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड का आप रिडक्शन करते हो यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, योर फाइनल प्रोडक्ट विल बी प्राइमरी अल्कोहल. यहाँ पे नोट, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू 1 डिग्री अल्कोहल. इसके लिए और एक ऑल्टरनेट मेथड उन्होंने बताया कि सिंस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एक्सपेंसिव रिएजेंट, सो व्हाट यू कैन डू, you can convert carboxylic acid. अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करते हो अल्कोहल के साथ, दिस रिएक्शन इज नोन एज esterification reaction. Esterification reaction. Clear? अगर acid is reacting with alcohol, in this case your final product will be RC double bond O OR plus H2O. See, I have written here double-headed arrow. The reaction takes place in the presence of acid. It is acid hydrolysis reaction. Why I have put this double-headed arrow? What does this indicate in organic reaction? में क्या indicate करता है? Reversible. Yes, the reaction is reversible in nature. मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो ईस्टर फॉर्म हो रहा है वो तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको फिर से जो स्टार्टिंग कंपाउंड था, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, वो ही मिलेगा. इसलिए इन दिस केस वी आर यूजिंग एसिड. एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. वो क्या करेगा? वाटर को एब्सॉर्ब करेगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ईस्टर. सो हमेशा एरो पे H+ लिखना कंपलसरी है, तब तक वो रिएक्शन होगा नहीं. इट इज एन एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. इज इट क्लियर? एंड फिर जाके क्या कर सकते हैं, अभी एसिड को अपन ने अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके वी हैव कन्वर्टेड इनटू ईस्टर, राइट? द सेम ईस्टर can be reduced. In this case, in your textbook they have given as nickel palladium, but nickel palladium use नहीं होता है. Only lithium aluminium hydride या sodium borohydride ही use होता है ईस्टर को reduce करने के लिए. Normal reducing agent like nickel won't help you out in this reaction. तो वहाँ पे थोड़ा गलती हो गया. तो using reducing agent like convert this ester into alcohol. Is it clear, students? Any doubt in this reactions? No, ma'am. Okay, fine. Tell me the final compound. What is the product you are going to get in this reaction? Which alcohol you are going to get? Ethyl alcohol.
Very good. Final product will be ethyl. I know this group is going to get converted into CHOH. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3, CH2, OH. बराबर? The final product will be ethyl alcohol and not acetaldehyde. One more example we'll see. Yes, in this case, इसका product बताओ. ये जो मैंने reaction लिखा है, tell me the product of this compound. N-pentyl alcohol. Okay, क्या किया आपने बताओ? ये क्या? What it is acting as a reducing agent, बराबर? Yes, ma'am. Okay, तो क्या मिला? CH3, then CH. 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 Okay. मिस वो CH2 तक का सेम ही रहेगा. हाँ, सी अभी ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर ये केस में सेम रिएक्शन अगर मैंने कैरिड आउट किया होता इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम या नॉर्मल क्या बोलते हैं निकल के प्रेजेंस में किया होता हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्शन, तो ये केस में क्या हो जाता था, ये जो डबल बॉन्ड है ये भी रेड्यूस हो जाता था. एंड इन दिस केस योर प्रोडक्ट विल बी, वी नो एक डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वी नो वन बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगेगा, मतलब एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड एज इट इज, CH का बनेगा CH2. डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है इन दिस केस बिकॉज ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो सभी को रिड्यूस, जितने फंक्शनल ग्रुप है सभी को रिड्यूस कर देंगे. डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को भी रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड का बना सिंगल बॉन्ड, देन वी हैव CH2 एंड दिस CH2 एज इट इज, और यहाँ पे क्या मिलेगा? CH2OH. अल्कोहल में ये ग्रुप कन्वर्ट हो चुका है, एल्डिहाइड का कन्वर्ट हो गया है अल्कोहल में. बट इफ आई एम गिविंग ऑन द एरो एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एरो पे दिया जाता है, तो इट इज वेरी सेलेक्टिव reducing agent, it only reduces aldehyde, carboxylic acid, ester, उसका ही reduction करता है, unsaturated हाइड्रोकार्बन्स का वो रिडक्शन नहीं करता है. तो इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, इट इज प्रोटेक्टेड वन, तो आपका CH एज इट इज CH2 CH2OH. हैव यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू रिएक्शन? दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग है. Yes. If I'm using lithium aluminum hydride product में जो double bond है वो as it is रहेगा, but if they are giving you as platinum palladium or nickel hydrogenation दे रहे हैं, तो in this case even your double bond is going to get reduced. Any doubt in this? हाँ मिस वो पेज दिखाओ ना एक बार पूरा. हाँ मिस नीचे थोड़ा. Okay miss. Okay. So here we have completed with methods of preparations of alcohol. Is it clear? Yes. Now we are going to start with next method. First we'll see अपन simultaneously लेंगे alcohol और phenols को. पहला methods of preparations of alcohols, then method of preparation of phenols. फिर दोनों का chemical reaction simultaneously we'll take it out.
Clear? In this case, method of preparation of phenols. यहाँ पे पहला reaction which we are going to see is from aniline. Aniline से phenol को में कैसे convert करना है aniline को phenol में. Clear? Can anyone tell me what is the structure of aniline? Benzene plus NH3. Benzene plus Benzyl ammonia. NH3. अमीनो बेंजीन आपको बोलना है. Yes, benzene plus benzene attached to NH2 group. बराबर? This is the structure of aniline. If I am treating aniline with, what is the name of this acid? Hello? Nitrogen. Nitrous. Nitrous acid. Nitric acid is HNO3, right? And this is nitrous acid. But ये form कैसे होता है? See, many a times what they do, they don't give you HNO2. On the arrow, they are just going to place it NaNO2 देंगे in presence of HCl. It is the only reaction. See, usually जो भी reactions होता है organic में, we put the heating sign, right? जब तक heating होगा नहीं, reaction आगे proceed होगा नहीं. But it is the only reaction, जो diazotization ये reaction का नाम है, which takes place at very low temperature, that is 0 degree Celsius to 5 degree Celsius. Usually, beaker के around they put the ice. Ice bath में ये reaction किया जाता है 0 to 5 degree Celsius. Or on the arrow you can directly put it as 273 Kelvin. Is it clear? अब ये reaction में होता क्या है? They won't give you nitrous acid directly. On the arrow they may place it out sodium nitrite NaNO2 in presence of HCl. अगर पहला step क्या होता है? Step 1 में this sodium nitrite, that is NaNO2, is going to react with HCl. और यहाँ पे क्या form होगा? What is forming in this reaction? HNO2 plus NaCl. Yes, HNO2 form hoga, that is nitrous acid is going to form and NaCl is going to form. Clear? Can anyone tell me this is primary amine, secondary amine ki tertiary amine? Primary. Secondary. See, जब भी NH2 प्राइमरी, सी कार्बन और नाइट्रोजन का प्राइमरी का डेफिनेशंस थोड़ा डिफरेंट है. कार्बन को अपन प्राइमरी कब बोलते हैं? व्हेन इट इज अटैच्ड टू One carbon. कार्बन और सिंगल कार्बन. सेकेंडरी कब बोलेंगे? इट इज अटैच्ड टू 2 कार्बन. टर्शियरी 3 and quaternary 4. Is it clear? That was the concept for carbon compounds. But if nitrogen वाला आ रहा है तो nitrogen के साथ आपको hydrogen देखना है. If it is 2, then you are going to call it as primary amine. अगर NH आ गया, you are going to call it as secondary amine. और सिर्फ N आ गया, you are going to call it as tertiary amine. Is it clear? Primary कब बोला जाएगा? आपको hydrogen देखना है. 2 रहेगा साथ में तो primary, 1 hydrogen तो secondary, 0 hydrogen तो tertiary. So aniline is primary amine, secondary amine की tertiary amine? Primary amine. Primary amine. Clear? अभी we have seen कि sodium nitrite on reaction with HCl gives you nitrous acid plus NaCl. अभी होता क्या है ये reaction में? Usually HCl को ना excess में लिया जाता है. तो क्या reaction होता है? See, I'm putting this NH2 here. तो भी aniline ही होने वाला है. मैंने यहाँ पे NH2 लिखा तो भी aniline, किधर भी लगा हुआ aniline ही रहेगा. अभी ये NH2, this group, तो आपको क्या करना है? HNO2 को अगर आप split up form में लिखते हो, right? What is the valency of nitrogen? 3. Okay, 3. तो what I am going to do, इसको थोड़ा अलग वे से लिखते हो. यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिया. क्लियर? इसको O और यहाँ पे OH. Even this is nitrous acid. Yes or no? Yes, ma'am. हाँ, ये भी नाइट्रस एसिड का ही फॉर्मूला मैंने थोड़ा स्प्लिट अप वे से लिखा है. सो यू आर गोइंग टू प्लेस दिस हियर N double bond O OH. I know in this reaction HCl is taken in excess, so HCl
फिर से यूज होगा। सी अब ये प्राइमरी अमाइन है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी गिवन आउट। तो यहां से H2O निकलेगा एक, यहां से दूसरा H2O निकलेगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? 2 molecules of water. दैट इज द बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बताओ। N2Cl. सी ये बेंजीन रिंग को आपने डिस्टर्ब किया है क्या? नहीं. नहीं, तो आप बेंजीन रिंग वैसा ही ड्रॉ करोगे, बराबर। बराबर. H2O यहाँ से गया, H2O यहाँ से गया, तो यहाँ पे कितने N बचे? इट इज 2. 2. N2, तो इट इज N2 और Cl, बराबर। Cl पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इसमें प्लस। तो ये समझा आपको ये कैसे होता है रिएक्शन? ये ऑलरेडी आपने इसमें HDA में, अरीन्स में पढ़ा रहेगा, सैनमियर्स में डायazotization रिएक्शन। इट इज known as diazotization reaction. Compound का नाम since it is benzene, we are going to call it as benzene diazonium. See, जब भी N वाला कंपाउंड्स आता है ना तभी अजो नाम आता है, और जब भी S सल्फर वाला कंपाउंड्स रहेगा तभी थियो आता है। क्लियर? तो बेंजीन डायazonium Cl है इसलिए क्लोराइड। आपको समझा ये बेंजीन डायazonium क्लोराइड कैसे मिला? मिस वो N2Cl को क्या बोलते हैं? N2Cl डायazonium ना, 2 है इसलिए डायazonium क्लोराइड, वो सॉल्ट है। Hello, Okay, miss. And the reaction is known as which reaction? What is the name of this reaction? It is known as Preparation of phenol. preparation नहीं, diazotization reaction। ये समझा आपको यहाँ तक? मिस हम्म, मिस वो जब क्या हम लोग को नाइट्रस एसिड मिल रहा है तो फिर उसको ऐड करने की क्या जरूरत है? किधर मैंने ऐड? यहाँ ये वाला। हाँ हाँ. सी ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड देते हैं, और ये फिर नाइट्रस एसिड रिएक्ट्स विद एनिलीन्स टू गिव यू बेंजीन डायazonium क्लोराइड। हाँ, हाँ, तो उसमें HNO2 क्यों लिखना है? वो तो बीच में बनेगा ना अपने आप. तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने दिया है ना कि ये दोनों के वजह से ये बन रहा है और फिर ये जाके इसके साथ, तो इन इट मे हैपन दे वोंट गिव यू HNO2 डायरेक्टली, एनिलीन देंगे, एरो पे ये दोनों कंपाउंड देंगे 273 केल्विन। तो यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि NaNO2 रिएक्ट्स विद HCl टू गिव्स यू HNO2 और फिर ये HNO2 रिएक्ट्स विद एनिलीन। अभी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दे हैव प्लेस्ड दिस आउट HNO2 हियर। क्लियर? Students, any doubt in this reaction? इसे लास्ट वाला. ये आपको ये करना है, ये सेम कंपाउंड, सॉरी ये नाइट, अभी शायद से आपको कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में सिर्फ अमाइंस है, राइट? अमाइंस में ये रिएक्शन फिर से आएगा, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी नाइट्रस एसिड कैसे रिएक्ट करता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? नाइट्रस एसिड HCl एक्सिस में होता है, तो यहाँ पे जब भी प्राइमरी अमाइन रहता है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज गिवन आउट। वैसे भी तो बेंजीन रिंग इज एज इट इज N2 and Cl। अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन डायazonium क्लोराइड, बिकॉज इससे आपको n नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स मिल सकता है। सी इफ आई एम ट्रीटिंग बेंजीन डायazonium क्लोराइड विथ क्यूप्रस क्लोराइड, तो मेरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन इफ आई एम ट्रीटिंग इट विथ क्यूप्रस क्लोराइड? Yes, students, this reaction you have already studied. Sandmiers वाला. Nitrous. Pardon? क्या मिलेगा आपको अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हो तो? वो नाइट्रोजन की जगह पर कॉपर आ. कॉपर नहीं आएगा। हलाइड ग्रुप देखो, क्यूप्रस क्लोराइड है तो हलाइड Cl है तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। सैनमियर ने वही बताया ना, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अगर आप डायazonium बेंजीन डायazonium क्लोराइड को ट्रीट करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट क्लोरोबेंजीन। अगर सेम रिएक्शन को आप क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? यस,
हाँ, ब्रोमोबेंजीन. If I'm treating this benzene diazonium chloride with Ki, पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कर रही हूँ, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट? Iodobenzene. आयोडोबेंजीन. आर यू Iodobenzene. गेटिंग? तो वैसा आपको यार सैनमियर्स ने क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ दिया था. अभी और भी ज्यादा इसका रिएक्शन, तो इट इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट. इससे बहुत ज्यादा अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर्म हो सकता है. अभी सेम वे इफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का आई एम डूइंग द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? व्हाट यू थिंक कि हाइड्रोलिसिस में क्या मिल सकता है? See, usually benzene diazonium chloride में ये जो N2 है, it always goes in the form of gas. N2 गैस के फॉर्म में उड़ गया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HOCl. HOCl नहीं होगा बेटा. बेंजीन विल बी एज इट इज OH ग्रुप आएगा. We know H and OH का स्प्लिट अप वैसा होता है, और ये H प्लस विल कंबाइन विद Cl और आपको HCl मिलेगा एज द बाय प्रोडक्ट, एंड योर प्रोडक्ट विल बी फिनॉल. Any doubt in this reaction from aniline to phenol अगर conversion करना है, तो aniline on reacting with sodium nitrite in presence of HCl at 273 Kelvin gives you benzene diazonium chloride, which on hydrolysis gives you phenol, and nitrogen gas is involved in the reaction. The reaction is known as diazotization reaction. Clear है? हेलो मिस आपने ऊपर जब भी बनाया था ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, उसको भी आपने डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन बताया था, और ये जो नीचे अभी बना उसको भी मैंने आपने इसको डायज़ोटाइजेशन नहीं बोला, मैंने इसको ही डायज़ोटाइजेशन बोला. फर्स्ट वन को, फर्स्ट स्टेप को डायज़ोटाइजेशन बोला जाता है, कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में. इसको मैंने हाइड्रोलिसिस बोला, इसको हाइड्रोलिसिस. ओके मिस. Okay, the reaction is clear. Okay, second reaction we'll see. पहला from benzene sulfonic acid देखते हैं. Okay, commercial method देखते हैं. ये जो अपन दो स्टडी करने वाले हैं, ये कमर्शियल मेथड है. यूजुअली इन इंडस्ट्री ये दो मेथड प्रेफर किया जाता है. तो इन कमर्शियल मेथड में पहला वी विल सी फ्रॉम क्यूमिन. If I'm giving you the common name, क्यूमिन भी उसका कॉमन नेम है, बट दूसरा कॉमन नेम अगर मैं आपको देती हूँ क्यूमिन का, इट इज नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन. तो टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमिन. Benzene plus iso. प्लस आएगा बेंजीन. ओके, बेंजीन. हाँ, उसको कौन सा ग्रुप रहेगा? बेंजीन को कौन सा ग्रुप अटैच रहेगा? Isopropyl. So what is the structure of isopropyl group? It is CH3 CH, बराबर ना, और CH3. So this is the structure of isopropyl benzene और cumin. Isopropyl benzene करके याद रखोगे तो it will be very easy for you to recall the structure of cumin. Cumin is nothing but isopropyl benzene. Is it clear? See, अगर cumin का oxidation करते हैं, we are doing the oxidation of cumin, but this oxidation takes place in presence of cobalt naphthenate. The oxidation, see अभी एग्जाम में इसके लिए हाफ मार्क्स दिया जाता है. तो ऑन द एरो जब भी आप क्यूमीन को ऑक्सीडेशन करते हो, ये कंपाउंड का नाम लिखना जरूरी है, कोबाल्ट नैफ्थेनेट. एंड यूजुअली जो भी फिनॉल्स का प्रिपरेशन होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फिनॉल. OH ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, वो ग्रुप लेके आना बेंजीन रिंग में, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो हर एक रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, इट ऑलवेज other than aniline, it always takes place under high temperature and pressure. तो जब भी कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का रिएक्शंस रहेगा तो अंडर हाई टेम्परेचर ऑफ प्रेशर ही ये रिएक्शन पॉसिबल है. इन दिस केस टेम्परेचर इज 423 केल्विन.
नहीं याद आता है तो एटलीस्ट लिखो अंडर हाई प्रेशर. इज इट क्लियर? तो अभी अगर क्यूमीन का वी आर डूइंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नाउ सी वी आर नॉट गोइंग इनटू द मैकेनिज्म पार्ट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म. आपको चाहिए I can give you the mechanism afterwards, but right now what you are supposed to remember it out कि क्यूमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन मीन्स आई नो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो इन दिस प्लेस ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा? तो हाउ यू आर गोइंग टू रिमेम्बर इट आउट? यहाँ पे सीसी में तो होगा नहीं क्योंकि ब्रेकेज ऑफ सीसी बॉन्ड इज क्वाइट डिफिकल्ट. इवन ये सीसी में नहीं होगा, बेंजीन रिंग और ये वाला सी और CH3 में भी नहीं होगा. तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा? in place of C and H. ये दोनों में ऑक्सीडेशन होगा. Is it clear? तो what you are going to do? C is as it is, methyl group is as it is, ये वाला methyl group as it is. I know the oxidation has taken place between carbon and hydrogen. तो यहाँ पे the oxygen have placed it out. So the name of this structure is, which we have formed as, ये starting compound was cumene. So I'm going to give the name as cumene peroxide. या हाइड्रोजन, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आप बोल सकते हो बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्यूमीन स्ट्रक्चर है. तो क्यूमीन हाइड्रोजन peroxide. Is it clear? So cumene on oxidation in presence of cobalt naphthenate at 423 Kelvin gives you cumene hydrogen peroxide. और फिर फर्दर ये क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को CH see if you are doing the hydrolysis or decomposition in presence of dilute HCl, if I'm decomposing it, heating it strongly at high temperature, तो dilute HCl के presence में, तो यहाँ पे क्या होगा students? What you are supposed to remember out, अभी ये जो bond है, ये bond इधर shift हो रहा है. मैकेनिज्म स्टडी नहीं करना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखो, ऑब्जर्वेशन रखो. ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये कार्बन का बैलेंस कितना हो रहा है? 5 हो रहा है. राइट. हाँ, तो यूजुअली मिथाइल ग्रुप्स का कार्बन को ब्रेकेज करना डिफिकल्ट है, तो ब्रेक यहाँ पे होगा. तो क्या मिलेगा आपको? योर बेंजीन रिंग इज एज इट इज, एंड यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है आ जाएगा, and your byproduct will be CH3 is as it is, C is as it is, CH3 is as it is, single bond का बना double bond O, that is acetone. तो इंडस्ट्रियल क्यों कमर्शियल मेथड? क्योंकि उनको फिनॉल के साथ एसीटोन भी मिल रहा है, तो दोनों प्रोडक्ट्स इज वेरी यूजफुल कमर्शियली. मिस ये नहीं समझ में आया, वो उसका बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो वो सबका सब क्यों अलग हो गया? सबका सब क्यों अलग हो गया? क्योंकि ये एज अ बाय प्रोडक्ट करके निकलता है रिएक्शन में. तो ये बॉन्ड मैंने सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैंने बताया कि ये बॉन्ड हाइड्रोक्साइड पेरोक्साइड का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इसका ये कार्बन का बैलेंस ही तो वो मिथाइल ग्रुप को नहीं छोड़ेगा, वो यहाँ पे ब्रेक करेगा बेंजीन, और उसको याद रखना है आपको. तो आपको एसीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा बिकॉज वी नीड फिनॉल, राइट? हाँ मिस. तो आपको एट दैट आई विल गिव यू द मैकेनिज्म 1 पेज का, वो अंडरस्टैंडिंग होगा भी या नहीं पता नहीं. मैकेनिज्म नहीं है तो डोंट गो फॉर मैकेनिज्म. Any doubt students? Cumene to phenol. Cumene का what we have done the oxidation of cumene in presence of, इसको highlight करना है, cobalt naphthenate at what temperature? 423 Kelvin. So what you're going to get? You're going to get cumene hydrogen peroxide, which on further decomposition in presence of dilute HCl will gives you phenol and acetone. Have you taken down this reaction? Yes. हाँ, सी साइमल्टेनियसली टेक डाउन करो रिएक्शन एंड डू द राइटिंग पार्ट. रिएक्शन जब तक लिखोगे नहीं आएगा नहीं. तो शुड आई गो फॉर अनदर रिएक्शन? सी एटलीस्ट रिप्लाई आउट. आपको समझ रहा है क्या?
मिस वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कभी लिखते हैं हम लोग, जब भी H2O2 रहेगा तभी लिखते हैं क्या? हाँ, H2O2 रहेगा तभी, सोडियम पेरोक्साइड जब भी Na2O2 रहता है तभी। अभी यहाँ पे पेरोक्साइड में क्या हो रहा है, एक साइड में क्यूमीन है, एक साइड में हाइड्रोजन है, तो आप गिवन द नेम एज क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर? यस मिस। Next reaction, maybe it is one of the commercial reaction. From chlorobenzene. Tell me the structure of chlorobenzene. मिस बेंजीन और Cl सिंपली। Yes, it is very easy. Benzene ring attached to Cl, right? See, अगर क्लोरोबेंजीन को अपन बेस के साथ रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? See, यूजुअली ये रिएक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्लोरोबेंजीन को NaOH बेस के साथ ट्रीट करना. So even this reaction takes place under high temperature and pressure. So temperature is 623 Kelvin and the pressure they are applying is 150 atmospheric pressure. नहीं याद समझो, कभी ऐसे हो जाता है कि यू आर नॉट सपोज टू, मतलब ये याद नहीं आता रिकॉल, तो आप अंडर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिख के भी दे सकते हो. ठीक है, कि अभी फॉर टाइमिंग क्या होता है, आई एम यस, प्लीज म्यूट योर माइक, इफ एनी डाउट यू कैन अनम्यूट इट. यस सुमित, सुमित फाइनली सी, क्लोरोबेंजीन को आप NaOH के साथ ट्रीट करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर अ टाइम बीइंग इन दिस केस OH तो आएगा NaCl, बट ऐसा इतना इजी नहीं है वो रिएक्शन कि तुरंत आपको ये मिलेगा. अभी क्या होगा फिर से, अगेन द फिनॉल इन दिस केस इज हाईली अनस्टेबल जो फॉर्म हो रहा है, क्योंकि फिनॉल इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, ये फिर से बेस के साथ रिएक्ट करेगा OH, फिर से NaOH के साथ, और फिर आपको एक स्टेबल आयन मिलेगा. एंड द स्टेबल, आई नो दिस रिएक्शन इज, सी एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, तो द रिएक्शन नेम इज, व्हाट इज दिस रिएक्शन नोन एज? कुछ मैम Neutralization. Yes, it is known as neutralization. So I know the product will be form water, तो form होगा ये reaction में, ये OH देगा, it is base, ये H देगा, OH और H combine होके water मिलेगा, और आपको यहाँ पे a stable ion मिलेगा which is known as sodium phenoxide ion. अभी what they do, ये मैंने जनरल, अगर ये रिएक्शन को आप ऐड करते हो तो जनरल रिएक्शन क्या मिलेगा आपको इन दिस केस, कैन एनीवन टेल मी? इफ यू आर एडिंग दिस रिएक्शन, लेफ्ट राइट पता है ना, क्रॉस Chlorobenzene हाँ मिस। यस, क्लोरोबेंजीन बराबर 2 Na क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद 2 Na yes, very good, 2 NaOH. okay, and the product यहाँ पे 623 वैसा ही रहेगा, 623 Kelvin and 150 atmosphere. okay, and the product will be phenol फिनॉल मिलेगा, Sodium. फेनॉक्साइड। peroxide सोडियम Sodium फिनॉक्साइड, phenoxide फिनॉल ion. फिनॉल कैंसिल हो जाएगा राइट और लेफ्ट का, तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ये माइनस चार्ज होगा, इस पे लोन पेयर्स है, सोडियम मेटल तो प्लस चार्ज, सो इट इज सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्लस और पानी मिलेगा। मिलेगा, ओके पानी मिलेगा, H2O प्लस NaCl भी मिलेगा. So this is the Dow's. See, so chlorobenzene on reacting with sodium hydroxide, two molecules will give a stable ion, that is sodium phenoxide ion plus H2O plus NaCl.
and this method was given by scientist named Dawes, so इसको बोलते हैं Dow process. It is one of the name reaction. Clear? अभी we are not interested in sodium phenoxide. ये stable तो मिल गया, but अपने को क्या चाहिए? In the compound we know we want as the product as phenol. तो ये sodium phenoxide को on further reacting with any acid you can take dilute ही चलेगा, concentrated का जरूरत भी नहीं पड़ेगा. dilute HCl में भी ये reaction हो जाएगा. Clear? अगर आप उसको ट्रीट करते हो dilute HCl के साथ या dilute H2SO4 भी चलेगा in this case. So what is going to happen in this reaction? What is the final product? You're going to get, phenol yes, Plus phenol NaCl. और plus NaCl. I will write the structure properly. Phenol plus NaCl. Is the reaction clear, student? So they ये ऐसे नहीं देते हैं टेक्स्ट बुक में, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव रिटन दिस रिएक्शन. यूजुअली दे आर राइटिंग इन दिस वे. आपने ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा कि क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद 2 molecules of NaOH in presence, we know each and every reaction for method of preparation of phenols, it takes place under high temperature and pressure only. So in this case the temperature is 623 Kelvin and 150 atmosphere pressure apply करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड which is a stable ion. फिर ये सोडियम फिनॉक्साइड को आप कोई भी एसिड के साथ डाइल्यूट लेस कॉन्सेंट्रेट उसके साथ रिएक्ट करते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा फिनॉल प्लस NaCl. मिस वो आपने जो ऊपर बताया था एकदम फर्स्ट वाले इसमें, वो जो फिनॉल है वो मिस आपने कुछ तो बताया था ना कि एसिड के साथ वो वो क्या हो रहा है, वो अनस्टेबल रहता स्लाइटली है. फिनॉल एसिडिक है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, सी ये रिएक्शन जो भी होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में फटाफट होते जाता है. क्लोरोबेंजीन इसके साथ ये मिलेगा फॉर अ टाइमिंग, बट आपका रिएजेंट है ना, आपके बीकर में NaOH, वो तुरंत वो फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और आपको सोडियम फिनॉक्साइड देगा. वो ये स्टेज में थोड़ा अनस्टेबल है क्योंकि बेस है, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके आपको सोडियम फिनॉक्साइड आयन देगा. ओके मिस. Students, is this reaction clear from chlorobenzene? दो commercial methods we have seen. एक था from cumene, second one is from chlorobenzene. Cumene का दूसरा common name याद रखो, isopropyl benzene. See, whenever you are writing the reaction, you're supposed to give the explanation. जिसको reaction आता है वो easily explanation दे पाएगा. In the exam, many times students जब भी कोई भी पूछा जाता है question, they draw out the reaction and they forgot to write once, at least one sentence में एक explanation लिखो. Explanation is very much needed. It carries half to 1 mark. Clear? The explanation में आप बोल सकते हो chlorobenzene on reacting with sodium fused with sodium hydroxide at temperature 623 Kelvin and 550 atmosphere gives you sodium phenoxide ion, which on further reacting with HCl gives you phenol. Clear? Yes. Okay. So phenol का पहला reaction कौन सा देखा? What was the first reaction of phenol? From aniline. Yes, from aniline. Aniline को आपने किसके साथ react किया? नाइट्रस एसिड. Nitrous acid. Nitrous acid. Nitrous acid कैसे form हुआ? NaNO2 plus NaNO2 sodium nitrite plus HCl. What is the temperature required for that reaction? 420. Kelvin. 273. कोई 473 बोला क्या? 2 हाँ, 273. Okay, the reaction is known as which reaction? diazotonium. Hydration. तो वहाँ पे क्या मिला आपको प्रोडक्ट? बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड मिला. हाँ, अगर उसको आप क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? Chloropensine. Chlorobenzene. ब्रोमाइड, Bromobenzene. KI, Iodopensine. हाइड्रोलिसिस, Phenol. फिनॉल. ओके. सेकेंड कमर्शियल मेथड आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमिन. क्यूमिन का क्या करना पड़ेगा? Oxygen के साथ. हाँ, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा. किसके प्रेजेंस में होगा वो रिएक्शन?
Naphthalate. naphthalate at 423 Kelvin. तो आपको क्या मिलेगा कंपाउंड? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. ओके, फिर उसको एसिड के साथ कोई भी डाइल्यूट HCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आपको क्या मिलेगा? फिनॉल प्लस एसीटोन. Acetone. And the next method, chlorobenzene, which is in front of you. Clear? The third method, we'll take it another. Third and the last method for preparation of phenol, it is from benzene, sulfonic acid. Can anyone tell me the structure of benzene sulfonic acid? Benzene ring. Benzene or Okay, benzene ring बराबर attached to which group? SNO2. सल्फोनिक ग्रुप का नाम क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? SO3 H. H. Yes. So the name becomes benzene sulfonic acid. Okay. If I am reacting it with NaOH, what is the name of this reaction? जब ये एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते तो क्या बोलते हैं आप उसको? neutralization. Yes, it is neutralization reaction. तो neutralization में क्या फॉर्म होता है? Salt and water. Water. Yes, तो benzene ring will be as it is. H2O फॉर्म होगा और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? SO3. Yes, student, what are you going to get? SO3 Na. और Na. Na पे चार्ज होगा प्लस, इस पे माइनस. क्लियर? तो the compound which is obtained is known as sodium benzene sulfonate. But we don't want this compound. We want our final product as phenol. तो अभी क्या होगा? ये similarly ये sodium benzene sulfonate को what they are going to do? They are going to react with another molecule of NaOH. मतलब same होगा fusion जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था. In this case we have seen NaOH के साथ chlorobenzene को fused किया था. In the same way सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को भी NaOH के साथ फ्यूज किया जाएगा एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो यहाँ पे टेम्परेचर इज 523 केल्विन एंड हाई प्रेशर. अभी व्हाट यू थिंक यहाँ पे क्या मिल सकता है? क्या होगा प्रोडक्ट? Na2SO4. Na2. अगर बेटा Na2SO4 पूरा चला गया, Na2 राइट, SO4 चला गया तो अपने को बेंजीन मिलेगा which we don't want as the product, right? फिनॉल मिलेगा और जो बचा उसको कंबाइन कर देंगे. Na2SO3 मिलेगा. OH will be given out, so byproduct will be Na2SO3. Clear? And your product will be OH. बराबर? Yes or no? Yes. जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन के केस में बोला था, यहाँ पे जो फिनॉल फ्रैक्शन जो फॉर्म होता है, इट इज वो अनस्टेबल होता है, क्वाइट अनस्टेबल. वो फिर से क्या करेगा? किससे रिएक्ट होगा? यस स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ रहा है क्या रिएक्शंस? थोड़ा Yes. थोड़ा थोड़ा बहुत तो अभी क्या नहीं समझा. सी, जब अपन बीकर में कोई भी, अभी ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आपने लिया, NaOH है, क्या हो रहा है? ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए फॉर्म, बट इस आपके बीकर में या कंटेनर में NaOH है ना, बेस है, और वी नो फिनॉल इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. तो फिर से ये फिनॉल इज गोइंग टू रिएक्ट विद NaOH अनदर मॉलिक्यूल. तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट इन दिस केस? मैम वो ONA ऐड होगा. सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा प्लस H2O मिलेगा.
Are you getting? सोडियम फिनॉक्साइड। अभी ये रिएक्शन को भी अगर मैंने ऐड किया, क्या मिलेगा मुझे फाइनल? बताओ। ये Benzene sulfonic acid. बेंजीन सल्फोनिक सोडियम एसिड, बेंजीन सल्फोनेट। हाँ, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट या बेंजीन सल्फोनिक, सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी चलेगा, प्लस 2NaOH. 2NaOH, 2NaOH बराबर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो सेम लिखना है आपको। ओके देन Sodium सोडियम phenoxide सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड हाँ plus प्लस H2O वाटर प्लस एडिटिव। ये सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फाइड। अभी क्या करोगे फिर से इसको? क्या सोडियम फिनॉक्साइड चाहिए कि अपने को? अभी ये सोडियम फिनॉक्साइड सेम में हर एक रिएक्शन जाता है। सोडियम फिनॉक्साइड को आप किसके साथ रिएक्ट करोगे? Dilute HCl. वेरी गुड, डाइल्यूट एसिड के साथ। इट कैन बी डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, दोनों चलेगा डाइल्यूट HCl के साथ। चलो रिएक्शन देखते हैं और क्या मिलेगा आपको फाइनल प्रोडक्ट। यू आर गोइंग टू गेट एसिड फिनॉल प्लस, फिनॉल, NaCl. see in the textbook they have directly given this reaction as sodium benzene sulfonic acid on reacting with NaOH gives you sodium sulfate। ये कहाँ से आया ये आपको पता होना चाहिए, ये कैसे फॉर्म हो गया। पहले ये रिएक्ट क्यों यहाँ पे 2 मोल्स यूज किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज रिएक्टिंग विथ NaOH, तो फॉर अ टाइमिंग फिनॉल होगा फॉर्म, बट सिंस आपके इसमें बेस है कंटेनर में, तुरंत वो फिनॉल बेस के साथ रिएक्ट करके आपको स्टेबल मॉलिक्यूल देगा, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड, एंड दिस सोडियम फिनॉक्साइड will further react with acid to give you phenol as your final compound। मिस कुछ ऐसा है नहीं क्या कि हम लोग वो फिनॉल को Na2SO3 से कंबाइन होने से रोक सके? SO3 से कंबाइन ना हो? कैसे? वो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, एसिड तो तुरंत बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर ही देता है ना, तो कैसे रोक पाओगे उसको? नहीं रोक सकते उसको? नहीं रोक सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन, ऐसे नहीं बड़े बड़े कंटेनर्स में वो रिएक्शन होते रहता है ना, तो उसको अगर रोकना। NaOH कम रखे तो? NaOH लिमिटेड रखा तो भी फिनॉक्साइड, क्योंकि अपने को स्टेबल आयन फॉर्म करना है, फिर वो स्टेबल आयन फिर ही जाके एक स्टेबल कंपाउंड फिनॉल मिलेगा ना आपको। हाँ, दोनों में अगर स्टेबिलिटी देखा ना तो सोडियम फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। We'll see in physical properties of phenols में कि why it is more stable। तो method of preparation of alcohols and method of preparation of phenols clear है students? yes. Any doubt in the method of preparation? हाँ मिस, वो याद कैसे रखने का? याद नहीं रखना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है, ऑब्जर्व प्रॉपर्ली रखना है। अगर कंसेप्चुअली ऑर्गेनिक रिएक्शन सब आपको समझ में आ जाएगा तो इट इज वेरी इजी, फिर रट्टा मारने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके मिस। मतलब मैम, बोलो। में जो लास्ट में फिनॉल बन रहा है वो एसिडिक नहीं है, लेकिन ऊपर वाला एसिडिक है। ये भी, बट अभी मैंने फिर सोडियम फिनॉक्साइड को मैंने HCl के साथ ट्रीट किया ना, अगर आप इसको फिर से NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड ही मिलेगा ना वापस वो मिलेगा उधर, हाँ, मतलब अभी NaOH। आपका मीडियम क्या है? अभी इधर मैंने HCl लिया है, यहाँ पे हाँ, मीडियम क्या था? बेस था। हाँ हाँ, मतलब वो NaOH की वजह से वो अनस्टेबल है। NaOH की वजह से बेस है, इसलिए वो तुरंत वो इसके साथ रिएक्ट करके आपको सोडियम फिनॉक्साइड देता है। हाँ ओके। हाँ, अगर उधर NaOH कम रख दिया हमने तो, लिमिटेड रखा तो लिमिटेड लिया तो नहीं, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ओके। तो स्टूडेंट्स, एनी डाउट? मिस ये सारा स्टेप्स लिखना पड़ेगा ना इसमें? नहीं, एग्जाम में नो नीड ऑफ राइटिंग होल स्टेप्स,
if you are writing this reaction, ये वाला जो reaction which I'm pointing it out, इतना भी लिखा तो भी actually only this is expected in the exam. This whole portion for your understanding purpose I have written it out. कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों सोडियम फेनोक्साइड मिल रहा है, क्यों ये दोनों के साथ रिएक्ट करके फिनॉल नहीं मिलेगा. So this is just an understanding part वाला portion. Main this is the reaction which is expected in the boards. ये दो reactions. Clear? Yes. हाँ. So physical properties and chemical properties we'll take in the next class for all of alcohols and phenols. Clear? We'll just solve some examples. 2 minutes to go then. Yes, ये दोनों solve करके मुझे final product बता. Yes, within a fraction of seconds आना चाहिए. Directly अगर no need of writing the steps. चलो बताओ first में क्या मिलेगा आपको product? Yes, मयूरी. पहला इसमें क्या मिलेगा? What is the product of the reaction? Yes, Mayuri Raut. Are you able to hear me? See, अगर आप try नहीं करते, it's of no use. Reactions, if I'm giving you, you are supposed to try it out. क्या मिलेगा? किसी को आंसर मिला? बेंजल्डिहाइड मिलेगा. Phenol. बेंजल्डिहाइड मिलेगा क्या रे? हाँ, पहला फर्स्ट स्टेप में मिलेगा, बट बेंजल्डिहाइड में रिएक्शन स्टॉप होगा क्या? यस स्टूडेंट. फिनॉल कैसे मिलेगा? बेंजल्डिहाइड मिल रहा है, बराबर. मैंने क्या बोला था, ये ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? CHOH में. तो आपको क्या मिलेगा कंपाउंड? बेंजीन रिंग इज एज इट इज, और यहाँ पे क्या मिलेगा? CH2OH. Yes, that is benzyl alcohol and not phenol. Clear? There is a difference between the two. CH2 आ रहा है बीच में, so it is benzyl. And the second compound, directly बताओ, अगर ये CET में आ रहा है तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? See, H2SO4 के प्रेजेंस में हो रहा है, बराबर. मैंने क्या बोला था, ये हाइड्रेशन रिएक्शन है, वाटर को ऐड करना है. इट विल गो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स की मार्कोनिकॉफ्स. मार्कोनिकॉफ. तो प्रोडक्ट बताओ ना फटाक से, क्या मिलेगा? मिस उसको कैसे बोलते वो नहीं आ रहा. CH3C will be as it is. Yes or no? CH3 is as it is. OH किसके पास जाएगा? इसके पास कि इसके पास? कम नंबर किसके पास है? C के पास. तो OH बराबर.
and Single CH3. तो क्या मिला? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल. सी जब तक आप सॉल्व नहीं करके देखोगे तब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. ऑब्जर्व करो प्रॉपर्ली क्या रोल है इसका. ये बोला तो डेफिनेटली हाइड्रेशन रिएक्शन है, वाटर को ऐड करना है. गो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल. डाइबोरेन आता तो यू विल गो अकॉर्डिंग टू yes एंटी मार्कोनिकॉफ. इवन दैट इज हाइड्रेशन रिएक्शन. ये क्या एक्ट कर रहा है? इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. डेफिनेटली एसिड का रिडक्शन होता है अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड का रिडक्शन होता है अल्कोहल में, तो फाइनल प्रोडक्ट इज अल्कोहल. क्लियर? तो शुड वी स्टॉप हियर? विल स्टॉप हियर. एनी डाउट? It seems no one is having any doubt, so I will leave here. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. ma'am. Thank you. Thank you.